Welcome dear students. Today we are going to learn class 7 subject computer chapter number 3 my charts in Excel. So first topic is significance of chart. In Microsoft Office Excel you can represent data graphically in the form of charts, thus making the information more interesting and easier to understand. This is an important feature as it helps to make the information simpler. In this section, you will learn how to create chart. So dear students, charts are simply a chart or a graph is a graphical or pictorial representation of data. Chart or graphs are more simpler and attractive to display results in variety of graphical format or pictorial form. Understanding charts. To understand charts, let us look at this example. The class teacher of class 7 decided to analyze the marks obtained by some student in 3 subjects, math, science and English. She used Excel to entries in the worksheet and also prepared a chart for it by using the chart feature of Excel. As you can see, when you represent data in the form of chart, comparison are much easier to understand even for a layman. तो यहाँ पे देख रहे होंगे, जब आपके पास कोई डेटा दे रखा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है, जब आपने इसको चार्ट में कन्वर्ट किया MS एक्सेल की हेल्प से, तो कंपैरिजन बहुत ही आसान हो जाता है. हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं डेटा को. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ चार्ट. देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ चार्ट. सो फर्स्ट इज डेटा सीरीज. द डेटा सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज लाइक ऑल डेटा वैल्यूज इन ए रो और कॉलम ऑफ द डेटा सीट. देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे डेटा सीरीज़. अगर हम किसी भी एक रो या कॉलम के पूरे डेटा को एक साथ लें तो वो एक डेटा सीरीज़ बन जाती है. चार्ट टाइटल. द चार्ट टाइटल एज द नेम सजेस्ट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ द चार्ट. मतलब हमारे चार्ट का टॉपिक क्या है, चार्ट किससे रिलेटेड है, तो ये चार्ट टाइटल में शो होता है. y-axis means vertical axis. Y-axis show the value of plotted data points. This is also called the value axis. X-axis also called the category axis. A category axis became a time scale axis when the axis type is set to date and time. Next is legends. Legends are used to represent the data series. These legends are associated with a pattern or color which is associated with the series and placed on the chart. Next is various chart types. There are various type of charts and column charts. In column charts, category are typically organized along the horizontal axis and value along the vertical axis. Example देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे. स्टूडेंट्स ने 3 सब्जेक्ट में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो हमने इसको कॉलम चार्ट की हेल्प से शो किया है डेटा को. नेक्स्ट इज लाइन चार्ट. ए लाइन चार्ट शोज ए ट्रेंड इन डेटा एट इक्वल इंटरवल. लाइन चार्ट्स आर यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग द चेंज इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है आपका जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और मई में कितना रेनफॉल हुआ है, तो इसको हमने लाइन चार्ट की हेल्प से शो किया है. इसके बाद है पाई चार्ट. ए पाई चार्ट shows the proportional size of the item included in a single data series. A pie chart generally used when you want to find out and graphically represent how much share each values of data series occupies in the whole. Means एक डेटा सीरीज पूरे होल का कौन सा पार्ट है, how much share each value of data series. मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 डेटा सीरीज दे रखे हैं, तो एक वैल्यू कितना शेयर ले रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, ये शो होता है आपका पाई चार्ट से. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग माइक्रोफोन फ़ोन कंपनीज हैं, उनके मार्केट में कितने शेयर हैं. तो इस टाइप के डेटा हमारे पाई चार्ट से शो होते हैं. बार चार्ट. बार चार्ट आर वेरी सिमिलर टू कॉलम चार्ट. द ओनली डिफरेंस इज दैट बार आर हॉरिजॉन्टल. बार हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, जबकि जो कॉलम चार्ट होते हैं वो वर्टिकल होते हैं. बार चार्ट टाइप आर द बेस्ट टाइप्स ऑफ कंपेयरिंग मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज़. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली और
आसाम के रेनफॉल में कंपैरिजन किया गया है। इसके बाद आते हैं स्टेप टू क्रिएट चार्ट। हाउ टू क्रिएट ए चार्ट। चार्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट यू ओपन योर एक्सेल सीट। कोई भी आपको एक्सेल सीट ओपन करनी है और उसमें डेटा एंटर कर देना है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम एंटर किए हैं और उसके 3 डिफरेंट सब्जेक्ट में उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे डेटा शो किया गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है MS Excel 2007 में। अब मैं इसको चार्ट में कन्वर्ट करूँगा, तो इसके लिए क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन द कॉलम चार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो ये डेटा था एक कॉलम चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट इज एडिटिंग चार्ट। वी कैन एडिट द चार्ट। हम चार्ट को एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस जैसे हमारे पास एक कॉलम चार्ट दे रखा है, हम इसको दूसरे चार्ट में भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्लिक ऑन एनीवेयर ऑन द चार्ट, कहीं पे भी क्लिक कर दो चार्ट में और चेंज चार्ट टाइप। तो कॉलम से जैसे मैंने लाइन पे चेंज करना है तो मैंने लाइन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो हमारा जो कॉलम चार्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, हम चार्ट लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जो चार्ट का लेआउट है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्लिक एनीवेयर ऑन द चार्ट और क्लिक ऑन चार्ट टूल, कंटेक्सचुअल टैब आएगा और उसके बाद जो भी लेआउट आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करना होगा गैलरी से। इसके बाद है ऐड द चार्ट टाइटल। यू कैन ऐड ऑल्सो टाइटल ऑफ द चार्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दो चार्ट के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन ले ऐड टाइटल का। चार्ट लेआउट पे क्लिक करने के बाद चार्ट टाइटल एंड अबव चार्ट। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, ये टाइटल दे दिया मैंने। तो हमारे चार्ट का टाइटल हो गया स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। तो आप लोग टाइटल को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यू कैन एडिंग द एक्सिस टाइटल। आप लोग एक्सिस के टाइटल भी दे सकते हैं। एक्सिस टाइटल दे सकते हैं आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। लेआउट टैब पे क्लिक करना है और इसके बाद एक्सिस टाइटल बटन पे क्लिक करना है और हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो भी आपकी एक्सिस है वहाँ से आप लोग टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिंग स्पार्क लाइन। तो ये स्पार्क लाइन वाला जो फीचर है ये हमारे 2007 में नहीं है। अगर कोई MS Excel 2010 को यूज़ कर रहा है तो वो अपने चार्ट में स्पार्क लाइन को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट द एरिया वेयर यू वांट टू इंसर्ट स्पार्क लाइन। उस एरिया को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप स्पार्क लाइन को ऐड करेंगे। उसके नीचे स्पार्क लाइन बटन आएगा इंसर्ट टैब के नीचे और वहाँ से आप लोगों को इंसर्ट करना है। सेलेक्ट द टाइप ऑफ, किस टाइप की स्पार्क लाइन आपको चाहिए। देन to create a spark line dialog box appear होगा। You see location range in simultaneously filled in the dialog box. Then select the data in worksheet and data range in the dialog box will be filled. Then click on OK button. The spark line will be appear. तो स्टूडेंट्स ये स्पार्क लाइन वाला फीचर 2010 में है, 2007 में नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट्स 2010 को यूज़ कर रहा है
तो वो इस फीचर का यूज़ कर सकता है। सो चैप्टर नंबर 3 इज़ completed. Thank you.